இல்லையா இயேசுவே என்னோடீரோ இயேசுவே என்னோடீரோ இயேசுவே என்னோடீரோ இயேசுவே என்னோடீரோ ஆமென் ஆமென் என்னோடீரோ ஆமென் ஆமென் என்னோடீரோ ஆமென் ஆமென் என்னோடீரோ ஆமென் ஆமென் என்னோடீரோ நான் மண்ணான இந்த மண்ணிலே வாசம் செய்கிறேன் நான் மண்ணான இந்த மண்ணிலே வாசம் செய்கிறேன் நான் விடாமல் என்னை நடத்த என் கரம் பிடித்து என்னை நடத்த நான் விடாமல் என்னை நடத்த என் கரம் பிடித்து என்னோடைய மாமே நாமே मेरे साथ रहो आमीन आमीन मेरे साथ रहो मेरे प्रभु मेरे यीशु तेरे बिना जीवन नहीं मेरे प्रभु मेरे यीशु तेरे बिना जीवन सारे उपकार भलाई के धन्यवाद। आपने अभी तक हमें संभाला, हमारी रक्षा किया। एक नई दिन, एक नई संगति आपने हमारे साथ जोड़ दिया है। आगे सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के आत्मा प्राण शरीर में चंगाई और सामर्थ्य दीजिए। आपके वचन के द्वारा हमारे आत्मा प्राण शरीर में अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஏசாயா 54:10 ஏசாயா 54:10 में लिखा है, மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னிட்டு விலகாது என்று சொல்லி கர்த்தர் சொன்னார். पहाड़ हट जाए, पहाड़ी टल जाए, परंतु मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगा। साल का शुरुआत हो चुका है, लगभग 22 दिन हो रहा है, 22 நாட்கள். ஆனால் தேவ கிருபை हमें ஒவ்வொரு நாளும் தாங்குகிறது. प्रभु की करुणा जो है हमें हर दिन संभालता है, हर दिन हमारा ध्यान रखता है। पिछले दिनों से हम इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, लगातार उसी वचन पर हम अध्ययन करेंगे. தொடர்ந்து அதே வசனங்களை நாம் தியானிக்கலாம். போன வாரத்திலே ஆதாம் ஏவாளுடைய நிர்மாணத்தை மூடின ஒரு கிருபை, आदम हवा के नंगापन को ढका हुआ एक परमेश्वर की अनुग्रह. நோவா की தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. அவர் பூமியை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த போது, ஆனால் நோவாவுடைய கண்கள் அவள் கிருபை உண்டானது. நோவா நிமித்தமாக, அவருடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தின் நிமித்தமாக அதை அழிக்காமல் அதை என்ன செய்தார்? இந்த பூமியின் மிருகங்களையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் பறவைகளையும் அவர் காப்பாற்றினார். அந்த பேழைக்குள்ளே கடந்து சென்றார்கள், அவைகளை காக்கப்பட்டது. वो जाल में जो कोई गए वो सबकी सुरक्षा मिला. லோத்து சோதோம் கொமோரா அழிக்கப்பட வேண்டிய நேரத்திலே தேவனுடைய கண்களிலே லோத்துக்கு கிருபை கிடைத்தது. जब सोदोम गोमोरा को नष्ट करने वाला था, तब प्रभु की नजरों से उसको अनुग्रह मिला है. இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனுடைய பிரயாணத்தை குறித்து பார்ப்போம். நம்முடைய பிரயாணத்திலே தேவனுடைய கிருபை எப்படி வெளிப்படும்? आज एक यात्रा के बारे में देखेंगे. अनेक நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பிரயாணம் செய்வதுண்டு. हम भी बहुत समय पर हम यात्रा करते हैं. कई समय हम गांव जाते हैं, कई समय हम बाहर किधर घूमने के लिए जाते हैं. परंतु क्या रास्ते में मार्गों में परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसा मिलता है?
சில நேரங்களில் நாம் ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணுவதுண்டு. சில நேரங்களில் சில இயற்கை காட்சிகளை சுற்றி பார்க்க நாம் பிரயாணம் பண்ணுவதுண்டு. அவர்களுடைய தெய்வ கிருபை நமக்கு எப்படி உண்டானது? சில நேரங்களில் பெண் பார்க்க நாம் புறப்பட்டு போகிறோம். சில நேரங்களில் पையனை मापला पाकर पुरपट पहुंचो कैसे हम लड़की देखने के लिए या लड़का देखने का जाते हैं, तभी परमेश्वर के अनुग्रह मार्गदर्शन हमें किस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इसी रीति से वो यात्रा कर रहा है. இங்கே மனிதன் பிரயாணப்பட்டு போவதை பார்க்கலாம். பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ஆதியாகம புத்தகம் உற்பத்தி புத்தகத்திலே 24 அத்தியாயம் 24ஆம் அதிகாரம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். 24ஆம் அதிகாரம் ஜெனசிஸ் chapter 24 verse 27 24ஆம் வசனம். என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் தம்முடைய கிருபையையும் தம்முடைய உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை. நான் பிரயாணம் பண்ணி வருகையில் கர்த்தர் என் எஜமானுடைய சகோதரர் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் என்றார். इधर पढ़िए. इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके नहीं 24 का 27 24 धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। परमेश्वर की स्तुति. இங்கே आब्राम குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும். आब्राम के बारे में पढ़ सकते हैं. आब्राम के बारे में सबको पता है. सभी लोगों ने बाइबल में बहुत बार आब्राम के बारे में पढ़ा होगा. आब्राम के बारे में किसको नहीं मालूम? आप बताओ यार, क्या आब्राम के गुरु तैयार नहीं? तो पता है सारों पता है आब्राम कौन है? सारों को पता है अब्राहम कौन है? आरोन को पता है? और तेरा उम्र कितना है? 12 उम्र है. आदम हवा के बारे में पता है स्टोरी? नूह के बारे में स्टोरी पता है? आदम एवं स्टोरी झूठ वाला है युद्ध रिफरेंस है. हैं? शार्लेट तो को आदम हवा का स्टोरी पता है? नूह का स्टोरी पता है? नूह का पता है? आदम हवा का नूह का स्टोरी पता है? नूह जास का नोवा का तेरे मान के नोवा यार चलो वो दाता था नोवा. वो दाता नहीं चला. अरे नहीं चला. परमेश्वर की स्तुति हो. इन्नो सर्दी आने से मिलेगा बराबर से वचन बच्चों का मन में जा नहीं पा रहा है, अंदर बैठ नहीं पा रहा है, बस नहीं पा रहा है. कड़ना हाँ मट्टे एल्ला उल्ला कारो या देना चाहता उगा पापा बर्थडे के ना कोई सापाट पोटागा बिरयानी अंडा बिरयानी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी फंक्शन से ना डांस ना पड़ेगा बहुत चला था कौन ना डांस ना पातो स्टेटस ना पातो डांस ना मगर वाला क्या मत होता है ऊर के स्वागत पड़ते एक स्वागत पड़ना ना नहीं सर लेकिन हम ऊर के सबको बुला के खाना के हमको नहीं दिया नहीं सर अब आधे न्यावर कौन के आधे न्यावर का आधे न्यावर के अना आदम आवर ये वाले याद करना प्रेज गॉड हालेलुया. चोरी उड़ करो मैं नल्ला प्लेयर करने से का नल्ला छोड़ सारे का सारा नहीं लिया सही बात क्यों चलेगा ரெண்டு வாரமா ஆகல. ஹalleluya. சரி கூட்டு வரதில்ல. அவங்க வீட்ல அவங்க தாத்தா இருக்காங்க, அவங்க பாட்டி இருக்காங்க, அவங்க அம்மா இருக்காங்க, அவங்க சித்தி இருக்காங்க, அவங்க வீட்ல அவங்க அப்பா இருக்காங்க, அவங்க ரெண்டு சித்தப்பா இருக்காங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தம்? 3 4 5 6 7 7 பேர் இருக்காங்க பெரிய ஆளுங்க. 7 लोग में कोई भी एक व्यक्ति लेके आ सकता है. पुलिस वाले लोग अलिशा एंड्रिया
संडे क्लास बराबर जाने का। तो पापा है ना, जोसेफ है, इस्रा है, डैनियल है, ताता है, पार्टी है, अम्मा है, 2 अम्मा पड़ा है उधर पे, काय के लिए? तो बोलने का बराबर से हर संडे को बराबर से लेके जाने का। मॉल जाओ या नहीं जाओ वो अलग बात है। मॉल में बाद में भी जा सकते हैं, संडे क्लास बड़ी बंद वहां से जा सकते हैं, कल्याण में बाजू में ही। समझा आप लोगों को? आज से बराबर जाने का। हालेलुया हालेलुया। ஆபிரகாம் குறித்து பைபிள் சொல்லு, ஆபிரகாம் के बारे में बाइबल में लिखा है, ஆபிரகாம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் தான் ஆபிரகாம்। परमेश्वर से आशीष का व्यक्ति आब्राहम। அவனுக்கு 100 வயது இருக்கும்போது ईसाक என்ற ஒரு குமாரனை தேவன் கொடுத்தார்। जब उसका उम्र 100 था तब परमेश्वर ने उसके लिए एक लड़का दिया, ईसाक नामक एक लड़का दिया। அவன் வளர்ந்து அவன் பெரியவனாகி அவனுக்கு ஒரு 40 வயது ஆனது। वो लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया और उसका 40 उम्र हो गया। कुछ समय के पहले उसकी मां गुजर गई। சில நாட்களுக்கு முன்பதாக அவனுடைய தாய் சாராள் மரித்து போகிறாள்। அவனுடைய தாய் மரித்து போன பிறகு அவனுடைய மனதிலே அந்த துக்கம் இருந்து கொண்டிருந்தது। जब उसकी मां गुजर गई तो वो दुख जो है उसके मन में ठहर गया। तब ताई குறித்து அவனுக்கு நிறைய ஒரு துக்கம் இருந்தது। मां के बारे में चिंता कर रहा था, इसलिए उसके पिता ने क्या किया, उसके घर में जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाकर बोला, तू मेरे लड़की के लिए एक लड़की को ले आना है। நீங்க மகனுக்கு என்ன செய்யணும், ஒரு பெண் என்ன செய்யணும், நீ கொல்ல வேண்டும், ஒரு பெண் என்ன செய்யணும், நீ திருமணத்துக்காக கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறது। वहां एक बादशाह हो रहा है। आब्राहम यार अழைத்தான், आब्राहम ने किसको बुला, उसके घर में जो बुजुर्ग है, मुदीर वयदुள்ளவன், अनुभव உள்ளவன் என்ன செய்கிறார், அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறான்। आब्राहम ने जो बुजुर्ग और अनुभव वाला व्यक्ति के पास वो जिम्मेदारी वो दे दिया है। இப்போது எலியேசர் என்ன செய்கிறான், சில வேலைக்காரர்கள், ஒட்டகங்கள், நிறைய விதமான பதார்த்தங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், வெளிவந்த பொருட்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறான், கொண்டுட்டு அவன் प्रयास செய்கிறான்। एलियेजर उसके कुछ नौकरों को, कुछ काम करने वाले और कुछ ऊंट को और कुछ भोजन और कुछ स्वादिष्ट उत्तम पदार्थ और अनमोल चीजों को लेकर वो लड़की ढूंढने के लिए निकल गया और पेट को தேடுவதற்காக பிரயாணப்பட்டு போகிறான்। அல்லேலூயா। அவன் பிரயாணப்பட்டு என்ன செய்கிறான், அவன் போகும் இடங்களிலே ஒரு இடத்துல என்ன செய்கிறான், அவன் தரித்து நிற்கிறான்। एक जगह में वो खड़ा हो गया, தரித்து நின்று ஒரு திட்டத்தை எடுக்கிறான், एक निर्णय लेता है। அந்த திட்டம் நிறைவேறினது, वो निर्णय पूरा हो गया और மனதிலே சந்தோஷம்। எழுதுமா என்ன சந்தோஷம், தேவ கிருபை என்னை விட்டு விலகவில்லை, प्रभु की अनुग्रह मुझसे दूर नहीं हुआ। என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவன் என்னை நேர்த்தியான பாதையிலே கொண்டு வந்தார்। லியோன் इधर बैठ, मेरे पिता अब्राहम मुझे सीधा राह पर, सीधे रास्ते में मुझे लाया और लाकर मुझे उसकी घराने में मुझे शामिल किया और एक குடும்பத்தோடு இணைத்த அந்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறார்। தேவ கிருபை, தேவன் என்ன செய்கிறார், நேர்த்தியான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்। परमेश्वर हमारा ऊपर उसकी अनुग्रह है। நாம் போகும் இடங்கள், ஒருவேளை எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நாம் போகிற காரியங்களை அது வாய்க்க செய்யுமா, தேவ கிருபை। हमारा काम में सफलता लाता है परमेश्वर की अनुग्रह। நான் செய்கிறது ஆசீர்வதிக்கப்படும், मैं जो काम कर रहा आशीष होगा, இதனால நல்லது நடக்கும், मुझे इसमें अच्छा होगा, நல்லது நிச்சயம் நடக்கும்। என்றால் தேவ கிருபை। நாம் உண்மையுள்ளவனுக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு। जो बड़ा व्यक्ति है उसको बहुत ऐसे आशीष मिलता है। एलियेजर ஒரு நல்ல உண்மையுள்ள மனுஷனாக இருந்தார்। एलियेजर अच्छा करा व्यक्ति था, यजमान को उन्में, तेरे पढ़ेता देवन को उन्में, अपने मालिक के लिए करा था, अपने सृजन और परमेश्वर के लिए करा था। देवन को उन्में இருக்கும்போது அவனுடைய பிரயாணங்கள் வாய்க்கும், அவனுடைய காரியங்கள் வாய்க்கும், அவன் செய்ய நினைக்கிறது அது நடக்கும்। अगर जो परमेश्वर में करा है
उसका काम सफल होगा। वो जो करने चाहेगा ना वो सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वेद वचन वही परमेश्वर का वचन है, उसको पढ़ने से केवल नहीं होता है, उस पर विश्वास करना है। நாம் வெறும் வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அந்த வசனத்தினை நினைக்கிறோம், நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கணும், விசுவாசம் இருக்கணும், அப்பதான் தேவ கிருபை உண்டாகும், तभी परमेश्वर के अनुग्रह होगा। एक वचन में आवाज आपको दिखाता हूं और एक उक्ति के बारे में। वही उत्पत्ति जेनेसिस 39 चैप्टर 21 39 அதிகாரம் 21 யோசேப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம் பாருங்கள்। 39 அதிகாரம் 39 39 கர்த்தரோ யோசேப்போட இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார்। हिंदी में पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा किया और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उन पर हुई। नीचे पढ़ेंगे। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो बस तभी वास्ते கீழே ரெண்டு வாசி। சிறைச்சாலை தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையில் ஒப்புவித்தார்। அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாம் செய்யும் யோசேப்பு செய்வித்தார்। கர்த்தர் அவனோட இருந்தபடினாலும் அவன் எதை செய்தானோ அதை கர்த்தர் வாக்கியப்படுத்தினபடினாலும் அவன் வசமாயிருந்த யாதொன்றையும் குறித்து சிறைச்சாலை தலைவன் விசாரிக்கவே இல்லை। இப்போ கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்ததினாலே அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவருடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்க செய்தார்। அவன் மேல தேவ கிருபை இருந்தது, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए सारा जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गया। எல்லா பொறுப்பும் அவன் கையில வந்துட்டு எதை குறித்து விசாரிக்கல, किसी के बारे में पूछता नहीं, भाई तुमने क्या काम किया, तुमने क्या खर्चा किया, क्या लेन देन किया है, कितना पैसा आया है, नहीं எவ்வளவு பொருட்களை வாங்கினாய், எவ்வளவு வியாபாரம் செய்தாய், எவ்வளவு உடைய கரத்தில் இருக்குது, எதை குறித்தும் விசாரிப்பு இல்லை। காரணம் தேவ கிருபை, परमेश्वर की अनुग्रह। அவன் தேவ கிருபை இருக்கிறதாலே அவன் செய்கிறதை குறித்து விசாரிக்க மனம் இல்லை। उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह होने से पूछताछ करने का मन नहीं है, और செய்கிறதெல்லாம் தேவ கிருபையாக இருக்கிறது। वो जो कुछ करता है वो प्रभु की अनुग्रह है। யோசேப்பு யார்? யோசேப்பு ராஜா அல்ல, सेनापति அல்ல, ஒரு தலைவரும் கிடையாது। यूसुफ कौन है? एक राजा भी नहीं, सेनापति भी नहीं है, महान बड़ा व्यक्ति भी नहीं, பெரிய மனுஷனும் அல்ல। அவன் விபச்சாரம் செய்தான் என்று சொல்லி குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கான்। उसने पोतीफा की औरत के साथ व्यभिचार गंदा काम किया करके झूठा इल्जाम लगा हुआ वो बंदी गृह में है। பொய்யான வழக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவன் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கான்। ஒரு குற்றவாளி, ஒரு கைதி, वो एक कैदी है। उसे आप घर में लेकर पढ़ते देखिए उसके इतिहास को। और कैदी अगर சிறைச்சாலை இன்னொரு கைதியோடு கூட இருக்கக்கூடியவன், वो बंदी गृह में वो दूसरे कैदियों के साथ रहने वाला व्यक्ति है। ஆனாலும் பாருங்க அந்த சிறைச்சாலை தலைவன் இருக்கிறான்। पापा जो है जेलर है, जेलर बोलते हैं हिंदी में अच्छे से, जेलर। उसके अंडर में पूरे वो जेल का काम होता है, सब सुविधा उसके अंडर में रहता है। அந்த जेलर के पूरा எல்லா பொறுப்பு இருக்கும்। அவன் என்ன செய்றான்? யோசேப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறான், அவங்கிட்ட அந்த பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டான்। அல்லேலூயா। अगर எகிப்திலே இருக்கிற மனுஷன்ட்ட கொடுக்கல, जो मिस्र का जो व्यक्ति है उसके हाथ में नहीं दिया। இவன் கானான் தேசத்தை சேர்ந்தவன், இவன் புற தேசத்தை சேர்ந்தவன், अन्य தேசத்தை சேர்ந்தவன், कानान का रहने वाला व्यक्ति है। इसका अता पता कुछ भी नहीं है, बाप मां के बारे में जानकारी नहीं है, தகப்பன் தாயை பத்தி எந்த விவரம் கிடையாது। ஆனா அவன்கிட்ட அந்த பொறுப்பு வந்து பாருங்க। அல்லேலூயா। उसके बाद जिम्मेदारी आता है, ஏனென்றா देव கிருபை சொல்லுது, परमेश्वर की अनुग्रह। यही परमेश्वर का वचन। आपका अता पता हो, आप कौन है कौन नहीं है पता नहीं, बड़ी बात नहीं, लेकिन யார் என்பது பெரிய விஷயம் இல்ல। ஆனா உங்க மேல தேவ கிருபை இருக்கும், தேவ கருணை மேல இருக்கும், परमेश्वर का ஆதரவு हमारे प्रणाम। अमरीडदु गैयान तले के बालकार थाने था
தாங்குகிறார் அவரிடதுகையான் தலைக்கு வலக்கரத்தாலே தாங்குகிறார் அவனே சத்தால் சோகமானே என்மேல் பரந்த கொடி நேசமே அவனே சத்தால் சோகமானே என்மேல் பரந்த கொடி நேசமே இயேசுவே ஆத்மனேஸ்வரே சாரோனே ரோஜாவோ லிலில் புஷ்பமுமா பதினாயிரம் கலிசிரதோ इत्र के सामने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में ताकि मुसीबत और बदनामी में माना खुशबूरा तेरे सवार हम करो तेरी है प्रभु अपनी जीवन भर इस जंगल के सपने दाऊद सुक्रमुधारी सवे Praise the Lord. அப்போ தேவ கருணை நம்ம மேல இருக்கும் परमेश्वर की हाथ हमारे पर होना चाहिए जो करो वो सफल होता है लेकिन எதை செஞ்சாலும் அது வாய்க்கும் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுது அப்போ தேவ கரம் என் மேல இருக்குது मैं एक उदाहरण बोलता हूँ प्रभु के हाथ मेरे ऊपर है कि नहीं इनका लिया है कि नहीं देव करण में लिख दे मेरे पर परमेश्वर के हाथ है वो हाथ क्या होता है आपके ऊपर आता है अंधकार उंगल मेरे मन में मैं अच्छा हूं मैं जो कर रहा हूं सफल हो रहा हूं जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं सफल हो रहा हूं जो मैं योजना बता रहा हूं सफल हो रहा हूं और जो चर्च में जाता हूं घर आशीष है उनकी निवास स्थान आशीष है उनके बच्चे आशीष है அவருடைய இல்லங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுது நாம ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் நிமித்தம் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கு அந்த பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்க எப்படி தெரியுமா தேவ கரணம் हालेलुया परमेश्वर की हाथ हमारे ऊपर है मैं पिछले दिन में हमारी बहन ने भाई जोसेफ के बारे में मुझे बताया मुझे बहुत दुख लगा मैं सबको वेदना लगभग उनके पति के बारे में बोला कि कुछ एक दो ऑपरेशन हुआ अभी भी एक ऑपरेशन हुआ बोलता है उनका पाँव में कुछ रॉड लगाया है अभी हुआ बोलते हैं सबको नहीं मालूम और उनका नजर भी बहुत कम हो गया दिखता नहीं है शुगर के कारण प्रभु की अनुग्रह आप देखने वाले जाके देखिए प्रार्थना करें गलत नहीं है जाओ उनको मिलो प्रार्थना करो गलत बात नहीं है वो हमारे एक हिस्सा है प्रभु के अनुग्रह मैंने कुछ साल के पहले मैंने एक स्वप्न देखा था मैं जो स्वप्न देखेगा वो होएगा ही होएगा पर महीना जाएगा साल जाएगा पर वो पूरा होता ही होता है मेरे लाइफ के बारे में मुझे परमेश्वर ने दिखाया मैंने सोचा कि ये इतना बड़ी नहीं है कुछ महीने के बाद मुझे ऐसा मारा वो सपना ने बराबर क्लियर से तब करके मेरा लाइफ को तो मैंने एक स्वप्न ऐसा देखा था मैं देखा कि चारों तरफ से एक वाटिका है और दोनों सुट्टीलो मेल इरुक्कुது वाटिका के चारों तरफ से रास्ता बंद है अब இரண்டு பேரை பார்க்கிறோம் दो व्यक्ति बाहर खड़े हैं वो अंदर नहीं आ रहे दो व्यक्ति बाहर खड़े बाहर भटक रहे तो बाहर चला गए ரெண்டு பேர் வெளியே போயிட்டாங்க உள்ள வரணும்ங்க मैं बहुत समय से उसको याद कर रहा था कब होने वाला है ये नहीं हो रहा है छोड़ दिया मतलब ये नहीं होने वाला है बहुत समय हो गया और कुछ साल के बाद परमेश्वर इससे दिखाया कि हो गया दो व्यक्ति को बाहर देख रहा हूँ बाहर ऐसा कि वो लोग अच्छे से खुशी से गया आ रहे नहीं अंदर बात तो उनका जीवन नहीं देखा बहुत दुखता है बहुत परेशान बहुत ऐसा गंभीर हालत में गए मुझे बहुत दुख लगा मैं उस स्वप्न को भूल गया कुछ समय के बाद मुझे उसको वापस याद दिलाया परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तो परमेश्वर की अनुग्रह उसकी
சஹாரா हमारे ऊपर होना चाहिए. எலிசா மேல தேவ கிருபை இருந்தது. அதான் அவன் போன அந்த இடத்துல இருந்து அவன் பெண் பார்க்க போனான். அவன் எத்தனை பெண்ணை பார்த்தான் சொல்லுங்க பாப்போம். वो कितना लड़की देखा उसने ताके कितना घर में गया था पता है कितना பெண்ணை பார்த்தான் அவன் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா अभी हम लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए एक लड़की सर मन पड़ता है एक लड़की से नहीं 2 लड़की भी नहीं 3 कुछ लोग जो है एक ही देख लेते कर लेते हैं कुछ लोग प्यार करते अच्छा है प्रेज लॉर्ड अच्छा है ना वो अच्छा लगता है अगर रियल लड़की देखने जाता तो कितना देखेगा एक घर से बोलेगा ये थोड़ा काला है ये थोड़ा सांवला है ये थोड़ा इधर कम है इसका बाल नहीं है इसका चलना बराबर नहीं है इसका ढंग बराबर तो बहुत पर एलियस से देखो डायरेक्ट गया एक ही उसने बोला वहां खड़ा हो गया एक ही शब्द बोला वो शब्द परमेश्वर ने सफल किया और कोई ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் देव बनावते சொல்லி அவன் வேண்டுகிறான் प्रभु के नाम की खातिर उसने विनती किया देवरुடைய प्रयाणத்தை வாய்க்கை செய்தார் परमेश्वर ने उसकी यात्रा को सफल किया और एलिसा பெண்ணை சுகமாக கொண்டு வந்தான் वो खुशी से लड़की को घर लाया इसहाक के लिए लड़की को लेकर आया அதான் தேவ கிருபை நம்முடைய காரியங்கள் பாருங்க வாசிக்கலாம் பாருங்க அதே போலதான் எலியாசுடைய காரியங்கள் வாய்க்கு செல்லுது அதே போலதான் யோசேப்பு वचन पढ़ेंगे यूसुफ का भी उसी प्रकार से काम सफल हुआ और इस समय சிறைச்சாலையில் ஒரு கைதியாக இருக்கிறார் पर उसको देखकर उसको पढ़ता है बच्चे को और சிறைச்சாலையில் கைதியாக இருக்கிறான் वो बंदी के में जेल में है அவனால என்னது தேவ கிருபை जिम्मेदारी उसको मिल रहा है கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல இருந்ததால परमेश्वर की हाथ उसके ऊपर है इसलिए परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर होगा आपकी नजर में कितना बड़े बड़े लोग पढ़ा हुआ लोग हो आपसे भी ज्यादा डिग्री लिया होगा आपसे ज्यादा उसने पढ़ाई किया रहेगा उसको त्यागत होगा अनुभव होगा और अनुभव त्यागत को आप कुछ भी नहीं आप साधारण से होंगे देखो साधारण और मनिदर में बोला आपके पास अनमोल ड्रेस भी नहीं होगा वेलेना ड्रेस वस्त्र इल्लाम साधारण निकला अना देव कर्म को मेरे इरुक्कुम परमेश्वर की हाथ अगर आपके ऊपर है आपका काम सफल हो जाएगा யோசேப்பு தேவ கரம் இருந்தது அவன் செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது அவன் அந்த ஆகாரம் கொடுக்கிறான் ஜெயிலுக்குள்ள வர்ற பொருள் வெளிப்புற பொருளுக்கெல்லாம் கணக்கு யாருமே கேட்கல हालेलुया जो जेल में आ रहा है भोजन आ रहा है बाहर जा रहा है जो कुछ काम हो रहा है अरेंजमेंट हो रहा है किसका भी जिम्मेदारी नहीं लिया है எந்த காரியத்தை விசாரிக்க மேலே செய்யற காரணம் என்ன தேவ கரம் நம்ம மேல இருந்ததனால தேவ கிருபை நம்ம மேல இருக்கணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம வாழுகிற இடத்துல தேவ கிருபை தேவ கரம் நம்ம மேல இருக்கணும் அதான் சொல்லு மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் இளைப்பதாலும் கிருபை உணர்த்துகிறது அது மட்டும் நமக்கு என்ன சொல்லுது விலகவே கூடாது நம்ம சாவு வரைக்கும் அந்த கிருபை நமக்கு விலகக்கூடாது प्रभु की करुणा हमसे कभी नहीं हटना है அந்த கிருபை மாத்திரம் மேல இருக்குன்னு ஒருவனும் உங்களுக்கு தொட முடியாது அசைக்க முடியாது நீ வர வர விருத்தி அடைவாய் आपको कोई हरा नहीं सकता है कोई आपको गिरा नहीं सकता है आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा परमेश्वर की हाथ हमारे ऊपर होना जरूरी है और वसंत वास्तव में आज हम नापति आज वही जेनेसिस 46 29 30 29 और 30 யோசேப்பு தன் ரதத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அதின் மேல் ஏறி தன் தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலை சந்திக்கும்படி போய் அவனை கண்டு அவனுடைய கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு வெகு நேரம் அவன் கழுத்தை விடாமல் அழுதான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் யோசேப்பை பார்த்து நீ இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயா நான் உன் முகத்தை கண்டேன் எனக்கு இப்போது மரணம் வந்தாலும் வரட்டும் என்றான் हिंदी में पढ़ेंगे उसको 29 30 40 का 46 का तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा। 29 और 30 46 का
जब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर हाँ अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए हाँ। मोसे देश को गया हाँ। और उससे भेंट करके उससे गले से लिपटा हाँ। और बहुत देर तक उससे गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा हाँ। मैं अब मरने से प्रसन्न हूँ हाँ। क्योंकि तुझे जीवित पाया और मेरे- तेरा मुख देख लिया। देख पाया। अभी यूसुफ के जीवन में उसके बाद धन है, संपत्ति है, पत्नी, 2 लड़के हैं, மனாசே எப்ராயிம் 2 புத்திர 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அவன் போன இடத்துல அவன் செத்துட்டான், அவன் இல்லைன்னு சொல்லி குடும்பத்தார் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. தகப்பன், தாய், சகோதரர்கள் அவன் இறந்துட்டான், அவனை காணவில்லை, அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகுது என்று நினைத்தார்கள். ஆனா எகிப்து தேசத்தை செய்கிறான், கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல இருந்ததால அவன் ராஜாவுக்கு அடுத்த பதவியில இருக்கான். மனைவி பிள்ளைகளோட கூட அவன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான். ஆனா குடும்பத்தை அவனால பார்க்க முடியல. எல்லாம் இருக்கு, सब कुछ उसके पास अभी है, सब उसने प्राप्त किया, पर उसके परिवार नहीं है. वो नागवन कांगरान तन சகோதரர்களை பார்க்கிறான். एक दिन उसके भाइयों को उसने देखा, அவனால நம்ப முடியல, वो भरोसा नहीं कर पाए मेरे भाई लोग हैं. நாட்கள் காலங்கள் சமயங்கள் கடந்து போனது. अब उसको घर पे जाके पढ़ के देखो, वो यूसुफ का स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी, बहुत बढ़िया इतिहास है उसका. இல்ல சகோதரிமா, அவன் எப்ப பார்த்த சொப்பனம், उसके स्वप्न कभी देखा? எத்தனை வயசுல? 17 வயசுல பார்த்த சொப்பனம், 17 उम्र में देखा. தகப்பனோட கூட இருந்த போது பார்த்த சொப்பனம். ஆனா எத்தனை வருஷங்கள், கொஞ்சம் 5 10 15 வருஷம் கழிச்சு நடக்குது. कम से कम 10 15 20 साल के बाद स्वप्न पूरा हो रहा है. हालेलुया. அதனால ஞாபகம் இருங்க, சில நேரங்கள் சில சொப்பனங்கள் தரிசனங்கள் வெளிப்படும். कुछ स्वप्न दर्शन प्रकट होगा, ऐसा नहीं बोलना भी, साल के बाद कुछ साल के बाद स्वप्न पूरा हो रहा है. சில வருஷங்கள் கழித்து சொப்பனங்கள் நிறைவேறும், நடக்கும். அதனால கவனமா இருக்கணும். ஒரு காரியத்தை அவன் வெளிப்படுத்துறான் என்றால் அது ஏதோ அதுக்காக ஜோம் பண்ணணும். कुछ परमेश्वर प्रकट करता है तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. யோசிப்புக்கு காலங்கள் சமயங்கள் கடந்து நடைபெறுது. ஆனா சகோதரர்கள் அப்படியே வந்து விழுந்தாங்க. इसके பாயில போய் इसी धन्यवाद कर रहे हैं, எப்படி பார்க்கணும் அப்படியே நடந்தது. அவன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முடிந்து போக என்று நினைத்தான். ஆனால் கர்த்தருடைய கரம், தேவ கிருபை அவனுடைய தகப்பனை நேசித்தது, அவன் உயிரோடு காண முடிந்தது. उसके पिता को जीवित देख पाया. इधर देव कृपा, ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है. தேவன் உங்களுடைய கண்களை நன்மையை காண செய்வார். तुम्हारी आंखों में भलाई को दिखाएगा. நான் காண முடியாது, நான் இனி என்னதை காண போறேன், நான் இனி எதை பார்க்க போறேன், எனக்கு என்ன நல்லது நடக்கும், என் பிள்ளைக்கு என்ன நடக்கும், என் குடும்பத்துக்கு என்ன நல்லது நடக்குது, मेरा जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चे में क्या होगा, अभी कुछ भलाई नहीं है, हमारा जीवन खत्म हो गया. அப்படி அல்ல, वैसा नहीं है. என் கிருபை உங்களுக்கு விலகாது. நீங்க தேவனோடு கூட இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கிருபை உங்களை விட்டு விலகாது. जब तक आप परमेश्वर के साथ हैं, उसकी छाया, उसकी परछाई बोलते हैं, उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा तुम में से कभी नहीं हटेगा. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தார்கள். பாவம் செய்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்த போது கூட அந்த கிருபை அவங்களை விட்டு விலகல. புரியுதா உங்களுக்கு? आदम हवा ने पाप किया, गलती किया, फिर परमेश्वर ने उसकी करुणा उससे दूर नहीं हुआ. यीशु को किसने मारा क्रूस पर? यीशु को क्रूस पर किले से मारा, फिर उसने क्या किया? उससे प्रेम किया, क्षमा किया और मनिता. अल्लाह और अன்பு கிருபை, அந்த கிருபை உங்களை தாங்கும் மனிதர்கள். बस करना में आपको बना रहना है. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், வேத வசனத்தை மறந்து போகாதீங்க. परमेश्वर की वचन को कभी मत भूलो. हमें वाला வைக்கிறது தேவ கிருபை, हमें போஷிக்கிறது தேவ கிருபை. मैं जिंदा हूं प्रभु के अनुग्रह, मैं जीवित हूं परमेश्वर के अनुग्रह. अरे मैंने पढ़ाई किया, मैंने मेहनत किया, मैंने क्या जॉब के लिए मैं वहां पर गया, मैंने इंटरव्यू अटेंड किया, 90 अटेंड करना है और उसके बाद मेरा ज्ञान, मेरा दिमाग समझते और उसमें कुछ पंचर हो गया तो क्या करेगा? पंचर करो, अरे मेरा दिमाग मेरा ज्ञान से पंचर हो गया है नहीं. நான் வாழ்கிறது தேவ கிருபை, நான் நல்லா இருக்கிறது தேவ கிருபை, मैं अच्छा हूं प्रभु की कृपा है. எனக்கு வீட்டை கட்ட செய்தார் தேவ கிருபை.
मेरे को परमेश्वर मदद करता है। आपको बहुत सावधान रहना है। मनिदनुடைய सूर्य விலகி இருக்க इंसान का चालाकी से बचकर रहो। बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, ಮನುಷ್ಯನ ಸೂಚಿ लेकिन देखो वसंत मनुष्य कार्य नल्ला रखी परमेश्वर से भी इंसान के बाद अच्छा लगता है। मुझे 2-3 बार कॉल आया, एक बार एक कॉल आया, मैसेज आया, एक मैसेज आया, बोला कि आपका बिल जो है सबमिट नहीं हुआ है, आश्रम का बिल। मैंने बोला मैसेज आया व्हाट्सएप में, बोला कि आज रात को आपका लाइट बंद हो जाएगा, बिजली आपको तुरंत ये नंबर में कांटेक्ट कीजिए तो आपको डिटेल बताएंगे। मैंने नंबर देखा, मैंने कांटेक्ट किया, बोला कि आपका लास्ट मंथ का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, आपका पैसा क्लियर नहीं हुआ है, हम जो बोलते हैं वो आपको डाउनलोड करो, उसके आप क्लियर करो। मेरे को समझा नहीं, मैंने आदमी का बताया, बोला कि आप डाउनलोड करके क्लियर करने बोल रहे हैं। इसने बोला कि इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाउनलोड करेंगे हमारा मोबाइल का डिटेल पूरा उस पर चला जाएगा। हालेलुया। हमारा बैंक में जितना अकाउंट है वो सब वो पैसा उसका हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे फोन आता है, बोलता है कि आपको लॉटरी लगा है, आपको 5 करोड़ 10 करोड़, पापा 5 करोड़ 10 करोड़ हाथ करोड़, बोला आपको ये करना वो करना। मैं बोला मेरे को फ्री भी नहीं चाहिए, मैं लेता नहीं हूँ, डायरेक्ट जाना था अकाउंट में भेज दो, मैं देख लेगा। हालेलुया। बजाज वाला फोन करता है, बजाज वाला फोन क्या कल फोन कर बोलता है कि आपका लोन सिलेक्शन हो गया है, इतना लाख का लोन ले लो, कभी ले रहे। मैं बोलता मेरे को लोन नहीं चाहिए। अरे बाबा ले ना, अच्छी बात है, आपको मिल रहा है, आप बिजनेस करो। मैं बोला मैं भाई क्या बिजनेस करूँ, बिजनेस करने में मदद करने वाला है भाई। अरे एक काम करो, आपका घर में मरम्मत करो। बोला कि घर को मैं वापस तोड़ के वापस बनाऊं। ऐसा बहुत काम नहीं होता है, बहुत सारा जो यूपी बिहार का भैया लोग हैं ना, उन लोग बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ना काम बहुत जबरदस्त रहता है, क्या बात करते हैं। साथ जी आप लोग ना, आपका काम है, आपका जरूरत आएगा, याद होगा ना, मालूम, बहुत सावधान रहे। आप अंदर बटन दबाएंगे, आपको में रखा रहेगा 5,000 10,000 वो भी चला जाएगा। किसी का लालच मत करो, प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर है। देव करूंगा मैंने रुकी समय बैठा मुफ्त में नहीं चाहिए। मुफ्त में कहाँ के ना, आज लोग मेहनत नहीं करते। तमिलनाडु में ऐसे रेशन में मुफ्त में कहाँ के ना काम पे नहीं जाते। मेरे कॉम्पिटा में बहुत सारे काम पे नहीं, हराम का खाना मिलता है, दारू बीरू मुफ्त में अच्छा मिल जाता है। मेरा परमेश्वर के हाथ मुझ पर करो, देवड़े करेंगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सफल करता है। ದೇಶದ ತಿಳಿಸಿರು नम्बे कई प्रयास से देव आशीर्वाद खड़े हो जाएंगे। हमारे आज की कमाई में परमेश्वर आशीष करे। नी सेवदला भाई को तुम जो कुछ करो वह सफल होगा। नी कीलागा मन मेला आवाए, तुम नीचे नहीं ऊंचा हो जाओगे। नी वालागा मन तले आवाए, तुम सेपुट में तुम सर बनोगे। अब देवर निस्सिरा नम्बे आशीर्वदिकवे आशीर्वदिपा। वो माल के आशीर्वदिकपड़ो, वो कुटुंब आशीर्वदिकपड़ो, उन पिल्लेगल आशीर्वदिकपड़ो। तू आशीष पाएगा, तेरा घर आशीष होगा, तेरे बच्चे आशीष होगा। वस्त्रम सोलिरदे देव बातें ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। परमेश्वर का वचन हमारे सर के ऊपर है, टंगा हुआ है। मैं आशीर्वादिकला निर्णय आशीर्वाद ಕೊರೆಬಿಲ್ಲ, ನಮಗಿಡದ ಕೊರೆಬಿಲ್ಲ। हमारे पास एक गति है, हम अपने आप को बदलो, प्रभु के साथ बना रहो और कृपा को लेकर निरंतर कर, ಅದು ಉங்களே ಬಾಳ ಬೇಕು। हालेलुया।